Friends, how are you all? Student, I am Aisha Afzal, I'm your instructor, and we have discussed the topic responsibilities of the youth in nation building. स्टूडेंट्स, इसमें हम बहुत सारी चीज़ों पर बात कर चुके हैं. आज हम ज़रा थोड़े से कुछ मेन पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं जिस पे कायदे आज़म ने भी बहुत जोर दिया, जो आज की यूथ के लिए बहुत ज़रूरी भी है कि हम जो है वो इस चीज़ को अगर अप्लाई करते हैं तो वो हम जो है वो इससे नेशन को तो सर्विसेज देंगे देंगे, लेकिन अगर खुद खड़े होंगे तो देंगे. तो लेकिन अगर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, डिपेंडेंट होंगे तो किस तरीके से दिया जाएगा. तो आज हम इन चीजों में बात करने वाले हैं और हम टॉपिक को भी जो है वो देखेंगे किस तरीके से हमने जो है वो करना है. स्टार्ट करते हैं. Government cannot absorb thousand impossible, but in the competition to get government service, most of you will be demoralized. Government can take only certain number, and the test cannot settle down to anything else, and being distinguished are always ready to be employed by persons who have their own access to grind. Now, I want that you must divert your mind, your attention, your aims and ambitions to other channels and other avenues and fields that are open to you. There is no shame in doing manual work and labor. There is an immense scope in technical education for we have technically qualified people very badly. You can learn banking, commerce, trade, etc., which provide so many opportunities now. Already, you find that new industries and are being started. New banks, new insurance companies, new commercial firms, are opening, and they will grow as you go on. Now these are avenues and fields open to you. Think of them and divert your attention to them. And believe me, you will there benefit. You will there yourselves more than by merely going in for government service and remaining there. You know what I should say, a circle of clerking, working there from morning till everything. Most dingy and comfortable conditions, you will be far more happy and far more prosperous with far more opportunities to rise if you take to commerce and in the industries, and will thus be helping not only yourselves but also your state. I can give you only instance. I know a young man who was in government service 4 years ago. He was into a banking corporation on 200 rupees because he had studied the subject of banking, and today he is manager in one of their firms and drawing 1500 rupees a month in just 4 hours. These are the opportunities to have, and I do impress upon you how to think in these terms. अगर हम बात करें कि हम किन चीज़ों पे बात करने वाले हैं आज, कि यहाँ पे वो ये कहते हैं कि जो सरकारी मुलाजमीन है उनमें से सबको तो जो है वो जॉब नहीं दी जा सकती, जो है वो कुछ को दी जा सकती है, तो बाकी जो है वो हौसला शिकन का शिकार हो जाते हैं. हौसला शिकन मीन्स डिसहार्ट हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं. अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे वर्ड आ रहा है, जरा आप लोग इसमें लिखते जाएं क्योंकि हमने सिनोनिम्स भी साथ साथ कर रहे थे कि जो मेन वर्ड आएगा तो हम उस पर लिख लेंगे. ठीक है, तो ये चूंकि बहुत जरूरी होता है चीजें. ठीक है, तो वहां पे इन्होंने यहाँ पे ये बात कही कि जो है वो
बहुत ज़रूरी होती है सब चीज़ें कि नामुमकिन है कि हुकूमत जो है वो हज़ारों की तादाद में नहीं दे सकती। अगर आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि सीट्स आती हैं 15 से 16 या फिर 4 से 5 आती हैं, 10 तक लगा लें, और उसके पीछे आप हज़ारों की तादाद में देख रहे होते हैं कि कितने लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। वैकेंसी कम होती है। यहाँ पे कायदे-आज़म ने एक बड़ी अच्छी बात की कि आप लोग में से बहुत से लोग हौसला शिकन का शिकार हो जाएंगे, डिमोरलाइज मीन डिसहार्ट। यू हैव टू राइट डाउन, ठीक है, डिसहार्ड होना कि जो है वो दिल छोटा कर लेना, डिस्करेज आप लिख सकते हैं, डिप्रेस लिख सकते हैं इसके उसमें से नम्स में, ठीक है, कि हुकूमत सिर्फ महदूद तादाद तक ले सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। तो बाकी किसी चीज में ठिकाना नहीं पकड़ सकते। कहते नाराज होने की वजह से इन लोगों के हाथों इस्तेसाल का शिकार हो जाते हैं कि भाई किसी ने दे दी तो इतने पैसे दे दो और मैं तुम्हें जो है ना वो आपको अच्छी जॉब प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब कहते हैं उनके हाथों जो है इस्तेसाल मीन्स क्या होता है, एक्सप्लॉइट करना, ठीक है, अब्यूज करना, कि उसका मिस यूज करना, ठीक है, कुछ लोग ऐसे करके आप लोगों को वो मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं, यू हैव टू राइट डाउन कि आप जो है वो कह सकते हैं कि जो है वो जो उनके जाती मफादात भी इसमें अपने शामिल होते हैं। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ आप अपने जहन, अपनी तवज्जो, अपने मकासद और अज़ाइम दूसरे रास्तों और दूसरे मौक़े और शोबों में इन्वेस्ट करें। सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा फ़नी है। अगर हम बात करें, आपके पास फ़नी तालीम में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। फ़नी तालीम कौन सी हो सकती है? मार्केटिंग है, ठीक है, बैंकिंग है, आपके ये वाले मामलात हैं, ठीक है। वो कहते हैं इसमें जो है वो तिजारत है, कानून वगैरह आप सीख सकते हैं, उसमें से भी आप लोग बहुत कमा सकते हैं, बहुत आगे भी जा सकते हैं। या अगर मैं मफहूम बताऊं इसके शॉर्ट करके, उन्होंने यहाँ पे ये बात की कि आप लोग सिर्फ इसी चीज पे ना रहेंगे, सरकारी मुलाजमीन जो है कहते हैं वो लोग भी बड़े जो है उनकी भी हालत जो है हालात अच्छे नहीं इस तरह के होते कि आप लोग सोचते हैं कि अगर हमें सरकारी नौकरी मिल गई तो हम बहुत पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे चांद पे। ऐसा नहीं होता। तरक्की जो है वो आप जो है वो तरक्की किसमें कि आप उनके पास बहुत सारे मज़ामीन है जिसमें आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि नई सनतें शुरू हो रही हैं, नए बैंक, नई कंपनियां, नए कमर्शियल कारोबार इदारे खुल रहे हैं। एवेन्यूज किसे कहते हैं स्टूडेंट? एवेन्यू रास्ते, ठीक है। एवेन्यू किसे कहते हैं कि नए एवेन्यूज को, ऐसे एवेन्यू कहते हैं ना, जैसे यहाँ पे हम अक्सर बात कहीं पे लिखा होता है एवेन्यू, ठीक है, वहाँ पे कहते हैं नए रास्ते खुले हुए हैं, आप शोबे आपके लिए खुले हुए हैं, जो है इंडस्ट्रीज हैं, नित नई इंडस्ट्रीज आ रही, क्रिमिनोलॉजी है आजकल। अगर हम बात करें, अगर हम इस टॉपिक से हटके थोड़ा सा, क्रिमिनोलॉजी आपके पास जितने बड़े एक से बढ़कर एक है, आप उसमें काम कर सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। तो कह रहे हैं मुझे यकीन है, कह रहे इस बारे में आप लोग सोचें और इनकी तरफ तवज्जो अपनी मोड़ रखें। आप सरकारी नौकरी करने और वहां रहने की निस्बत खुद को ज्यादा मुनाफा, मतलब खुद को ज्यादा फायदा पहुंचे। मुनाफा मीन्स फायदे, राइट, बेनिफिट्स, यस, गुड, ठीक है। जिसके बारे में कहूंगा कि जो क्लर्क ही अगर बनकर वहां इंतहाई तारीफ और तकलीफ दे हालात, सुबह से शाम तक वो काम करते रहेंगे, लेकिन वो इस तरह से चीजों को और पैसा उस तरह से नहीं कमा पाते। कहते हैं आप अपनी कॉमर्स और सनतें बनाएं, अपनाएं उनको, तरक्की तरक्की आप बहुत करेंगे, ठीक है। बहुत से मौके हैं जो खुशहाल जिंदगी की तरफ आपको लेके जाएंगे। तो कहते हैं वो खुद भी रियासत की, अच्छा कह रहे इसी तरह कह रहे हैं नाम अपनी ना सिर्फ खुद बल्कि जो है वो रियासत की भी मदद करेंगे। देखिए पहले उन्होंने अपनी बात की, जैसे मैंने आप लोगों से अभी हम बात कर रहे थे, आप फिर बात कर रहे थे, खुद पहले अपनी मदद होगी तो हम किसी और के लिए फायदेमंद होंगे, ठीक है। स्किल्स जो है आपके अंदर स्किल्स होंगी, आप स्किल्स सीखेंगे तो आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। वो कहते हैं मैं मिसाल दे सकता हूँ कि एक नौजवान को जानता हूँ जो सरकारी मुलाजिम था, 4 साल कबल जो है वो 200 रुपये बैंकिंग कारपोरेशन में चला गया क्योंकि इसने बैंकिंग का मजमून पढ़ा हुआ था। यहाँ पे उन्होंने छोटा सा किसी भी एक्सपेरिमेंट या छोटी सा उन्होंने वाकया यहाँ पे बयान किया है, ठीक है। तो आज वो इदारों का मैनेजर है और 4 साल में 1500 रुपये माहाना तनख्वाह ले रहा है। आप देखिए स्टूडेंट, ये जिस दौर की बात करें वहाँ पे 1500 की बहुत बड़ी कीमत होती थी। अगर हम 2000 और 2001 की बात करें तो 1000 रुपए की कीमत बहुत बड़ी होती थी, ठीक है। वो आज ऐसे लगता है 100 रुपए है, ऐसे ही है। तो वो कहते हैं कि यही वो मौके जिसको अपनाया जा सकता है और आपको जोर देता हूँ आप इस सलाहत में सोचें। मतलब किस में सोचें? जोर देना किससे थे? इम्प्रेस, इम्प्रेस अपॉन स्टूडेंट। यहाँ पे ये छोटा सा वर्ड जो है वो आप लोग जो है छोटे छोटे वर्ड्स यहाँ पे किस तरीके से उन्होंने वो किए हुए हैं। यहाँ पे देखें, तनख्वाह लेना मीन्स ड्राइंग है, यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है।
the number of words that they have used in sense of synonyms sometime, right? तो आप लोग ने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे इन्होंने जो है वो किस तरीके से बात की हुई है. क्लर्क है तो वो किस में होगा? एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑफिशियल है, ठीक है. तो यहाँ पे हम इस तरीके से हम बात करें. इंस्टेंस किसे कहते हैं? इंस्टेंस, गाइड, यस, मिसाल देना जो है वो इस तरीके से हम लोग से बात कर सकते हैं. सॉरी, इंस्पायर मिसाल के उसमें आएगा. हाँ, मिसाल के उसमें आ रहा है. हाँ, मिसाल, बिल्कुल इस तरीके से इन चीजों के बारे में. स्टूडेंट यहाँ पे एक वर्ड है इमेंस, लास्ट उसमें पैराग्राफ में, देयर इज नो शेम इन डूइंग मैनुअल वर्क. दस्ती काम मीन्स के कहते हैं जो काम आप कर रहे हैं हाथ से करें उसमें कभी शेम ना महसूस करें. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता. ये स्टूडेंट यहाँ पे आज चैप्टर एंड होता है. मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं. अगर आज के दौर के प्रैक्टिकल, कि अगर हमारे यहाँ प्लम्बर है, उसको इतनी इज्जतदार उससे नहीं देखा जाता है कि प्लम्बर ही तो है, लेकिन अगर देखा जाए वो अपनी दिहाड़ी लगा के जाता है, 1000 रुपए एक ही दिन से, एक ही उस पे एक जगह से वो ले लेता है. ये उसका स्किल है. अगर आप यहाँ की पाकिस्तान की बात, अगर हम बाहर के मुल्क की बात करें तो यही लोग सबसे ज्यादा हाई पेड होते हैं. क्यों? क्योंकि इन्हें काम आता है. तो स्किल जो होता है वो आपको पे करता है. जिसने स्किल सीखा हुआ है वो कभी भूखा नहीं मर सकता. ठीक है. अच्छा स्टूडेंट्स, क्योंकि हुनर जो है वो आपको पे करता है. ठीक है. अब स्टूडेंट्स इसके उसमें आ जाते हैं वर्ड्स मीनिंग पे. वर्ड्स मीनिंग कर लेते हैं कि अफेक्शन का क्या मतलब होता है? डिवोशन, लव. ठीक है. अगर सिनोनिम्स की बात करें यहाँ पे, द फीलिंग ऑफ लाइकिंग और लविंग समवन. ठीक है. डिवोशन में आ सकता है, लाइक में आ सकता है, आप अफेक्शन भी डिवोशन में आ जाता है, लव इसे कह सकते हैं. ठीक है. यू हैव जस्ट केयरिंग अबाउट अनदर वन. यू हैव अ सिंपैथी. आप इसमें सिंपैथी भी लिख सकते हैं सिनोनिम्स में. यू हैव, आई जस्ट गिव यू अ नंबर ऑफ सिनोनिम्स राइट नाउ. ठीक है. अगर हम एवेन्यू की बात करें, रास्ता, जरिया. ठीक है. एवेन्यू का क्या मतलब होता है? रास्ता. Write down the meanings of each, right? This is very easier for you. Just you have to just write down the translation. At the time you have to write down your own self, right? Okay, let's move on. ब्लॉकेट. ब्लॉकेट किसे कहते हैं? हम कहते हैं ब्लॉकेज हो गई है कहीं पे. जैसे फॉर एग्जांपल बारिश हुई और पानी वहां पे खड़ा हो गया, बंद हो गया, तो वहां पे क्या हुई? किसी चीज की ब्लॉकेज हुई. ब्लॉकेज किसे कहते हैं? रुकावट को, राइट? क्या होगा इसका जो है, अगर हम इसका वो बनाए, सिनोनिम्स बनाए? क्लोजिंग हो रही है कहीं पे. ठीक है. ब्लॉकेज है. ठीक है. हाँ, ब्लॉकेज तो वर्ड है. जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग की बात कर सकते हैं. ठीक है. ओके. चांसलर, सरबरा. ठीक है. जैसे वाइस चांसलर होता है, उद्गार है, वहां का क्या है? सरबरा है. ठीक. अच्छा स्टूडेंट, ऑफिशियल हेड. जैसे वाइस चांसलर की बात करें, ऑफिशियल हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी, वी हैव जस्ट टॉक अबाउट, राइट? इफ यू टॉक अबाउट डिप्लोर. डिप्लोर किसे कहते हैं? अफसोस करना, मजम्मत. टू क्रिटिसाइज समथिंग पब्लिकली. जैसे कोई वाकया हो जाए, कोई अफसोसनाक वाकया हो जाए, तो वहां पे जो आपका सीएम है, ठीक है, कोई भी ऐसा बंदा जो वहां पे हाई अथॉरिटी है, तो वो उसकी मजम्मत करता है. ठीक है. they just feel and they just talk about the grief incident. Does he feel or she feel something in the grief? They have just shared their point of view at the time, right? अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक्सप्लॉइट, सॉरी, डिसग्रंटेड. डिसग्रंटेड किसे कहते हैं? नाराज, खफा. ठीक है. जो है वो किसमें? एनॉय का मतलब, एनॉय किसे कहते हैं? नाराज हो जाना. कोई एनॉय है, हम कहते हैं ये एनॉयड विद मी, राइट? अगर हम एनॉयड की बात करें यहाँ पे, एनॉयड है, डिसअपॉइंटेड है कहीं चीज से. ठीक है. एक्सप्लॉइट मीन्स
ये किस में आता है स्टूडेंट? इसमें साइकोपैथ जो एक वर्ड है वो किस सेंस में यूज किया जाता है कि किसी अपना फायदा उठा लेना और किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा देना, चापलूसी भी हम कह सकते हैं। चापलूसी कर रहे होते हैं ना कुछ लोग, जैसे जॉब्स में लोग कर रहे होते हैं, डायरेक्टर के जो कुछ जो है उसके साथ अच्छे होते हैं और बाकी की खबरें पहुंचाते रहते हैं, अगर आपने सुना हो। ठीक है, ये घरों में भी होता है, सास बहू जो होती है, मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द अनऑफिशियल वे राइट नाउ, कि वहां पे भी कुछ इस तरह के मामला चल रहे हैं। वी हैव टू टॉक अबाउट द साइन ऑफ पेन, राइट? द वर्ड इज स्टूडेंट, यहाँ पे इसका वो हो सकता है, आप ये कह लें, आप इससे जो है उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, to treat somebody unfairly, right? Okay, holocaust, कत्लेआम, ठीक, क्या होगा? कत्लेआम करना, ठीक है, ये चीजें मैटर कर रही होती है। अच्छा, आगे चले। वसी तबाही, जैसे आज फलस्तीन में तबाही जो है वो अच्छी खासी मची हुई है, ठीक। इनकम्बेंट, बिल्कुल ऐसे ही, गुड। ऑफिशियल पोजीशन, राइट। अच्छा, सेल्फलेसली, बेलॉस होके, से बेलॉस की खिदमत करनी चाहिए। A way that shows that you have to with this thinking about the needs, happiness of the other people, कि हम किसी के लिए बहुत अच्छे मुखलिस होके किसी के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करें, किसी को खुशी दे रहे हैं, राइट। विजिलेंस, होशियारी, ठीक है, ठीक है। इस ये सब चीजें किस में आ जाती हैं? ये जो है आपके पास किसी चौकस होना, मतलब कहते हैं होशियार रहे इसे। तो उन्होंने कायद आज़म ने क्या कहा था? ठीक है, किन लोगों से होशियार रहना है? जो आपका गलत आपसे फायदा उठा रहे हैं, ठीक। डेंजर से, ठीक है, एनी टाइप ऑफ डेंजर, राइट। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने काफी चीजों को डिस्कस किया। आज हमारा चैप्टर एंड हो गया है कि इसमें जो है वो बेनिफिशियल आपने किसके लिए रहना है? नेशन के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। वॉलंटरी, वॉलंटरी किसे कहते हैं? बिल्कुल, और उसमें आप पैसे नहीं लेंगे, ठीक है। आप वॉलंटियर काम करें, तो जो वॉलंटियर काम करना होगा, ये बहुत आपको सिखाता भी है और ये बहुत जरूरी भी है, ठीक है। आपको अंदाजा होता है कि आप जो है वो किस तरीके से खिदमत कर रहे हैं और आप अपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं नेशन को, ठीक है। दिस फॉर द डे वी हैव डिस्कस मोर इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड।